Good morning, students of plus 2 class. Our next topic or the topic which is in continuation is gesticulation. तो ये डायग्राम से आपके सामने डायग्राम समझा रही हूँ मैं आपको. In the gesticulation, जैसे हम कर चुके हैं पहले, this is epiblast. These cells of hypoblast. This is yolk sac. This is amniotic cavity, and there is formation of an invagination. This is called primitive streak. This is primitive streak. This primitive streak invaginate, and from here some cell migrate. Some cell migrate which form first endoderm, and some cell which remain in this cavity, they form mesoderm. And the remaining cell of epiblast, they form ectoderm. This is formation of mesoderm. And these are epiblast. This is further same. This is the yolk sac. And here you can draw the mesodermal cells. These are mesoderm. And these are the cell of hypoblast which form endoderm. तो endoderm की फॉर्मेशन आप दिखा सकते हैं. अगर इनको लेबल कर रहे हो तो एंडोडर्मल सेल करो एंडोडर्म, और इनको लेबल कर रहे हो hypoblast. These are epiblast. And this is mesoderm. यहाँ केवल आपको ये दिखाया है कि एक इन्वेजिनेशन आती है जिसको हमने परमिटिव स्ट्रीक बोला, और उस परमिटिव स्ट्रीक के अकॉर्डिंग सेल्स की मूवमेंट होती है जिनको बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट और गेस्टुलेशन. कुछ सेल जो सबसे पहले माइग्रेट कर जाती हैं, पूरी कैविटी को लाइन करती हैं, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो कि यolk sac है, व्हेन इट इज लाइंड बाय एंडोडर्म. और जो रिमेनिंग सेल्स हैं जो कि बीच में जो स्पेस है उसमें आ जाती हैं, दे फॉर्म द मेसोडर्म. एंड रिमेनिंग सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट दे फॉर्म द एक्टोडर्म. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ fetus as well as formation of different extraembryonic membrane. This is the primitive digestive tract, primitive digestive tract, and this is fetus. These are chorionic villi which form the placenta, and these are the extraembryonic membrane. This one is called, this is amniotic cavity. This red layer is trophoblast, and this is somatofluidic extraembryonic mesoderm, somatofluidic extraembryonic mesoderm, and they form amnion. They form amnion. Amnion is the extraembryonic membrane, and this amniotic cavity is filled by amniotic
amniotic fluid, and this amniotic fluid help in absorption of shock. Then some of the fecal cells, they are present in amniotic fluid. In the amniotic fluid, the volume of amniotic fluid is regulated by fetus because the fetus also swallow the amniotic fluid. Then this amniotic fluid is the basis of a test that is called amniocentesis. In this test, with the help of an hypodermal needle है, hypodermal है जो कि डर्मिस से जा रही है, amniotic fluid को बाहर निकालते हैं और amniotic fluid में fetus की सेल होती हैं, उसमें चेक करते हैं कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. And this outer one, this is further trophoblast, layer of trophoblast, and this is somatopleuric extraembryonic mesoderm, somatopleuric extraembryonic mesoderm, and this form the chorion. Chorion is the outermost layer, and these are the chorionic villi which form the part of placenta. फिर हम इसकी बात करते हैं. Inside is endoderm, and this is splanchnopleuric extraembryonic mesoderm. It forms the part or extraembryonic layer. This is called allantois. Allantois is the extraembryonic layer through which umbilical blood vessel passes or form the umbilical cord. And here further this is endoderm. अंदर वाली एंडोडर्म में और बाहर वाली है मेसोडर्म. This mesoderm is splanchnopleuric extraembryonic mesoderm, and they form the yolk sac. You know that yolk sac is the vestigial organ, but yolk sac is the primary tissue which help in hemopoiesis. That means the blood cell formation take place in the yolk sac. अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो एम्नियोन है, एम्नियोन में इंटरनल लेयर कौन सी है, एक्सटर्नल लेयर कौन सी है. इंटरनल लेयर इज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, एक्सटर्नल लेयर इज सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. फिर बात करते हैं कोरियन की. कोरियन में इंटरनल है सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड आउटर इज ट्रोफोब्लास्ट. फिर बात करते हैं यॉक सैक की. इंटरनल इज एंडोडर्म एंड आउटर इज स्प्लैंचोप्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. फिर बात करते हैं एलेंटोइस की. इनर इज एंडोडर्म एंड आउटर इज स्प्लैंचोप्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. तो ये दिखा रहा है कि किस टाइप से एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन रही है. इसके बाद हम लास्ट डायग्राम पे जाएंगे. इन द लास्ट डायग्राम इट इज शोन दैट हाउ द फीटस इज अटैच्ड. तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है फीटस की अटैचमेंट का कि फीटस की जो इम्प्लांटेशन है यूट्रस के कौन से पोर्शन पे होती है. फीटस की इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के फंडस पोर्शन पे. तो यहाँ एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डेसिडुआ. इम्प्लांटेशन लास्ट पोर्शन पे हो रही है. देन देयर इज वन वर्ड डेसिडुआ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिडुआ? डेसिडुआ इज द एंडोमेट्रियम. फीटस की इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम चेंज हो जाता है. तो एंडोमेट्रियम की 3 टाइप की लेयर्स बन जाती हैं जिनको बोलते हैं डेसिडुआ, बेसिलिस. डेसिडुआ बेसिलिस होगा जो कि कोरियोनिक विलाई के जस्ट अपोजिट होगा.
सेकंड को बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस होगा जो कि एम्ब्रियो को कवर करेगा, जो पार्ट एम्ब्रियो को कवर करेगा दैट इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और लास्ट है डेसिडुआ पेरिटलिस। ये लास्ट पोर्शन है डेसिडुआ का जो कि पूरे यूट्रस को कवर कर रहा है। तो सबसे पहले इस पोर्शन को ही देखते हैं। दिस इज डेसिडुआ पेरिटलिस, दिस इज डेसिडुआ पेरिटलिस। और फीटस आपको दिख ही रहा है। तो इसमें फिर ये वाला पार्ट, ये पार्ट था कि मैं डॉट लगा रही हूँ, ये वाला पार्ट, ये एंडोमेट्रियम का पार्ट है, इसको बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। और फिर एंडोमेट्रियम का ये पार्ट, ये पार्ट जो कि फीटस को सराउंड कर रहा है, जो कि ब्लू लाइन से इंडिकेटेड है, जो मैं डॉट लगा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ कैप्सुलरिस। This is the last part of uterus and here is formation of cervical plug और cervical mucus का plug बन जाएगा। Cervical mucus plug which is the protective plug in pregnancy. Then these are chorionic villi, chorionic villi, and this hole is umbilical cord. This hole is umbilical cord and this part, this is yolk sac and this one is allantois. This is fundus part of uterus where implantation of fetus take place. अब हम बात करेंगे पार्टुरेशन और बर्थ की कि बर्थ कैसे होता है। फुल्ली फॉर्म्ड फीटस दैट इज आफ्टर द 9 मंथ एंड 7 डेज जब फीटस मैच्योर हो जाता है, fully mature fetus and placenta, it sends the message to mother pituitary gland which start releasing oxytocin. और बुक्स में आपको ये भी मिलेगा fully mature fetus and placenta cause the mild contraction of uterus. यूट्रस में कौन सी लेयर है जो कि अब तक बिल्कुल शांत थी, क्विक थी, दैट इज द मायोमेट्रियम। अब ये यूट्रस है, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड तक मैसेज भेज रहा है। तो through fetus and fully mature placenta and it is the neuroendocrine mechanism. Mother pituitary gland secrete the hormone oxytocin. Oxytocin work on myometrium of uterus. Myometrium of uterus की contraction होगी। जैसे myometrium of uterus की contraction होगी तो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जैसे ही और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा कॉन्ट्रैक्शन और फोर्सफुल होगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और फोर्सफुल होगी ऑक्सीटोसिन की अमाउंट बढ़ेगी, ऑक्सीटोसिन की अमाउंट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन फिर फोर्सफुल होगी। इसका मतलब हर पहले वाली कॉन्ट्रैक्शन पीछे वाली कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा विग्रस है एंड दिस विग्रस कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन एक्सपेलिंग द बेबी फ्रॉम द यूट्रस। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में एमनियोटिक कैविटी रप्चर हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है, सर्विक्स की जो ओपनिंग है यूट्रस की वो एनलार्ज होने लगती है। और नेक्स्ट स्टेज में फीटस एंड न्यू बोर्न बेबी, हम न्यू बोर्न बेबी बोलेंगे, दैट गेट डिलीवर्ड। और थर्ड स्टेज में एक्सटेंडोनिक मेम्ब्रेन along with placenta they come outside। तो यहाँ फिर हम एक और बात करेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड पे इफेक्ट रहेगा
जब mammalian है they start production of the milk under the influence of hormone oxytocin. और मिल्क में जो फर्स्ट मिल्क होता है that is very good for the newborn baby because that contain the immunoglobulin A that contain IgA, and the first milk that is of yellow color and is called colostrum. In this way mother provides the passive immunity to the newborn baby. This is all about this chapter. Read this chapter, draw all the diagram and post me all the diagram of this chapter up to Monday. Thank you.